Hello students, good morning. Um, in this session we are going to discuss about memory and till now we have covered about microprocessor architecture and its operations. Now we are going to discuss about the memory. So I have already told you that what is memory. Memory is a storage device which is used to store the information. Microprocessor performs the operations. It takes the instruction from memory and it also reads the data from memory, then perform the operation according to the instruction. Then it stores the result in the memory or sends the result to the output. So the data or instruction where it is storing the data and instruction, माइक्रोप्रोसेसर जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है वो स्टोरेज डिवाइस को हम कहते हैं मेमोरी. इट इज एन एक्सटर्नल डिवाइस. ये माइक्रोप्रोसेसर से एक्सटर्नल डिवाइस होती है. और माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर में भी कुछ रजिस्टर्स होते हैं, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर एरे टू परफॉर्म सम इंटरनल ऑपरेशंस. इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय अगर किसी डेटा को होल्ड करना है तो माइक्रोप्रोसेसर अपने इंटरनल आर्किटेक्चर में जो रजिस्टर्स हैं उनका यूज करती है, जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग मॉडल में बताया था. फॉर एग्जांपल BCDEHL, तो इसे हम कहते हैं रजिस्टर एरे. अभी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, विच इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस. So it stores the data or instructions in the form of bits. Bits means binary digits which is either 0 or 1. Memory is of two types. Prime memory or main memory, and the second type is storage memory. In this section we are going to focus about prime memory and we will see the storage memory later after completing the prime memory. So prime memory or main memory is of two types: read write memory and ROM. So read write memory is also called as RAM or random access memory. Random access memory. And ROM, it is called as read only memory. So prime memory or main memory is of two types: read write memory, or it is also called as random access memory or RAM. The second type is ROM, read only memory. So if we talk about RAM or read write memory, so read write memory is made up of several registers. Read write memory is a group of several registers. It is made up of several registers. And one register, these are several registers. We can say that R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. So in this example, if we suppose this is a read write memory, it is collection of 8 registers R0 to R7, and every register is made up of flip flops. Every register is made up of or group of flip flops. So if this is R0 register, then it is made up of several flip flops.
This is one flip flop. This is to indicate one flip flop. And this one read write memory is made up of registers, and one register is made up of flip flops. So flip flops are which is made up of field effect transistor. Okay, flip flop or field effect transistor. So this one flip flop is called as memory cell. This one flip flop, any one of the flip flop is called as memory cell, which is the basic element, which is the smallest basic element of the memory. It is called as cell, memory cell. And one flip flop can store one bit of information, either instruction or data. It can store one bit, and one bit can be 0 or 1. 0 or 1. So this is about random access memory or read only memory. It is collection of registers, and one register is made up of several flip flops. In this example there is 8 flip flop, 1 2 3 4 5 6 7 8, and one flip flop is called as memory cell, which can store one bit of information, either 0 or 1. And this 0 or 1 shows the voltage level. Okay, so random access memory or read write memory is used to store the data temporarily. So the user can use read write memory to store either data or instruction while performing the operation. It is not permanent, but it is temporary. It can be stored temporarily in the random access memory. Now, if we talk about the read on, in this memory, the user can perform read operation, also the write operation. Both operations can be performed in the random access memory or read write memory. So we can say that the information stored here can be altered. And now if we talk about the read only memory, so read only memory is also group of registers, and the registers are made up of diodes, and this is not the temporary storage, but whatever data or whatever information is going to be stored here, that is permanent. So because this is read only memory, only read operation can be performed here. User cannot alter the information stored in the read only memory. So the examples, what kind of information can be kept here is, for example, monitor program. Monitor program. Monitor program is a kind of program which is used to instruct the microprocessor that what kind of operation it should perform to monitor the system. That kind of programs or instructions can be stored in the read only memory, which does not need any alteration by the user. So okay, now we have concluded about RAM memory, which is a two types, read only memory, read write memory and read only memory, and इन दोनों के बारे में हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे. अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है. फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी सेल होता है जो कि किसी भी एक बिट डेटा को स्टोर कर सकता है. तो अगर हम फ्लिप फ्लॉप की जो फ्लिप फ्लॉप को भी हम वी विल सी लेटर, इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रो की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये एक मेमोरी से कम्युनिकेट कर सके या डेटा का ट्रांसफर कर सके. तो माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर में होनी चाहिए जिससे कि वो मेमोरी से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके या डेटा का ट्रांसफर कर सके. तो माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू सेलेक्ट द मेमोरी चिप,
जिस भी मेमोरी से डेटा का ट्रांसफर करना है, माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी चिप को सेलेक्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए. एंड देन माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एबल टू identify the register from which the data is going to be transferred, because the data can be stored in any of the registers. Okay, this is collection of registers now. So memory is grouped in the form of registers, and every register has some address in the form of zeros and ones. Every register has some address in the form of zeros and ones, which is called the memory address. And with the help of memory address, microprocessor identify that from which register the data is going to be either read or written. Okay. So microprocessor ऐसा होना चाहिए कि वो उस रजिस्टर को आइडेंटिफाई कर सके with the help of memory address, कि वहां से डेटा को ट्रांसफर किया जा सके. फिर माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप को सेलेक्ट करने में एबल होना चाहिए, फिर रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने में एबल होना चाहिए. आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स. इफ microprocessor has to read from memory, then it generates read control signal. If microprocessor has to write in the memory, then it generates write control signals. तो ये सब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो माइक्रो प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सके. ओके, so let us see what is flip flop. Flip flop is also studied. You have also studied flip flop in your subject digital logic design. So we are going to just recall. So flip flop की क्या requirement होती है? Flip flop is a memory cell which is used to store one bit of information. तो इसमें एक इनपुट डेटा बिट या इनपुट डेटा लाइन की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम डी इन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसमें जो भी आउटपुट होगा वो अवेलेबल होगा, जिसे हम डी आउट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एक इनपुट डेटा लाइन टू एंटर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट, एंड एक आउटपुट डेटा लाइन जहाँ से आउटपुट अवेलेबल होगा. और इस फ्लिप फ्लॉप को इनेबल करने के लिए एक इनेबल लाइन जिसको en से रिप्रेजेंट करना है. ये हो गया एक फ्लिप फ्लॉप जिसमें एक बिट को स्टोर किया जा सकता है, आइदर 0 और 1. सो इस फ्लिप फ्लॉप में अगर इस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट को कंट्रोल करना है या इनपुट पे जो भी चेंजेस हो सकते हैं उनको अवॉइड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट पे दो बफर्स का यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ट्राई स्टेट बफर. तो अगर हम ट्राई स्टेट बफर की बात करें तो इसकी मदद से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट पे जो अनअवॉइडेबल चेंजेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है. यहाँ पे दो ट्राई स्टेट बफर का यूज किया गया है, एक इनपुट पे और एक आउटपुट पे. ट्राई स्टेट बफर्स का क्या यूज है यहाँ पे? टू कंट्रोल द आउटपुट एंड टू अवॉइड द अनइंटेंशनल चेंजेस इन द इनपुट. तो ये जो ट्राई स्टेट बफर्स हैं इनके अपने इनेबल लाइंस हैं, और ये जो इनपुट पे जो ट्राई स्टेट बफर है इसका जो इनेबल लाइन है उसको राइट कंट्रोल सिग्नल से इनेबल किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है. और आउटपुट का जो इनेबल आउटपुट बफर का जो
इनेबल पिन है उसको रीड कंट्रोल सिग्नल से इनेबल या कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे रीड और राइट कंट्रोल पिन्स है, यहाँ पे इन पे एक बार शो किया गया है। दिस बार इंडिकेट्स दैट these are active low pins or active low signals and these can be activated when there is low on this line, there is low level of voltage on this line। तो ट्राई स्टेट बफर ये कैसे काम कर ये ट्राई स्टेट बफर का यूज किया गया इस फ्लिप फ्लॉप में। ये फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा, व्हेन this flip flop will get this right active low signal on right pin, then this buffer will be enabled and whatever the data is available here that will be written or that will be stored in the flip flop. Okay, similarly to read from the flip flop, here read control signal should be active low, should be low, and then this buffer will be activated and whatever the data is stored here will be available on the output line and the read operation can be performed। तो इस तरह से ये फ्लिप फ्लॉप काम करता है। ठीक है, तो अगर हम अगर हम इन कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन कर दें, फॉर एग्जांपल एक फ्लिप फ्लॉप को एक ब्लॉक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस एक फ्लिप फ्लॉप को अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें और कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन कर दें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4, तो अगर यहाँ पे हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन एक साथ ग्रुप कर दें तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हो गए 4 नंबर ऑफ रजिस्टर्स और आउटपुट बफर and input buffer। Then to enable the input buffer there will be write control signal and to enable the output buffer there will be read control signal। Okay, so if we see the diagram then we can say that कितने नंबर ऑफ बिट्स को ये स्टोर कर सकता है, कितने नंबर ऑफ बिट्स को ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितने नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसमें 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को ग्रुप किया गया है एक साथ, तो ये 4 नंबर ऑफ बिट्स को एक साथ स्टोर कर सकता है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें आई फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट लाइंस की जो रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट लाइन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 4 को ग्रुप किया गया है तो हर का एक अपना इनपुट लाइन होगा, तो देयर विल बी 4 नंबर ऑफ इनपुट लाइन। सिमिलरली देयर विल बी 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। These lines are used to write into the register. This is called a register. Now this is called a register, which is collection of or combination of 4 flip flops. Okay, so these are the input lines which are used to write into the register, and these are the output lines if it is represented by y0 y1 y2 y3। So these are the output lines which are used to read from the register। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। तो इसे जो लिखने का तरीका है 1 क्रॉस 4, इसका मतलब कि एक रजिस्टर 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। तो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट द फ्लिप फ्लॉप। दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट द फ्लिप फ्लॉप। This is 1 cross 4 register. It means one register can store 4 bits.
Now to understand the concept of memory in detail, we are going to consider some other examples, other examples also. There are several number of registers. In the previous example, we have considered only one register. So let us consider now. We have four number of registers. And one register can store 8 bit of data. One register can store 8 bit of data. Similarly, I am not going to show in these blocks. All the registers are similar. So let us consider there are four registers and each register can store 8 bits of data or instruction. So what are the requirements? There should be input buffer, there should be output buffer, and these are the input lines I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7. These are the output lines. Suppose Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 and Y7. And to enable the input buffer, there should be one control signal which is represented by WR bar, which is active low signal. And to enable the output buffer, there should be read control signal. So there are four number of registers which are grouped together, and one register can store 8 bits of data. तो अगर माइक्रो प्रोसेसर को इनमें से किसी एक रजिस्टर से कम्युनिकेट करना है, या तो रीड करना है तो राइट करना है. सपोज दिस रजिस्टर का नाम है R0, इसका नाम R2, R1, R2 एंड R3. तो एक टाइम पे किसी एक रजिस्टर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, तो अब इनमें से किसी एक रजिस्टर को सेलेक्ट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा. तो आइडेंटिफाई करने के लिए डिकोडर का यूज करते हैं. आइडेंटिफाई करने के लिए डिकोडर का यूज करते हैं. डिकोडर से सिंपली आइडेंटिफाई हो सकता है. तो इसमें कितने डिकोडर्स की रिक्वायरमेंट, कितने साइज के डिकोडर का रिक्वायरमेंट होगा? 4 number of registers are there, so the size of decoder should be 2 cross 4 decoder. 2 cross 4 decoder. 2 cross 4 decoder में कितने नंबर ऑफ इनपुट लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी? तो 2 cross 4 decoder में नंबर ऑफ इनपुट लाइंस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 2 होगी, एंड which is represented by A0 and A1. These are the input lines to the decoder. Okay, now number of output lines will be 4, and with the help of 2 input lines, how many combinations are possible at output? There are 4 combinations which are possible at the output: 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. So with the help of 2 cross 4 decoder, one of the register can be identified or selected at a time. तो डिकोडर की हेल्प से यहाँ पे रजिस्टर को आइडेंटिफाई या सेलेक्ट किया जा सकता है. तो इसमें जब माइक्रो प्रोसेसर सपोज अच्छा इसका जो साइज को जो इंडिकेट करना है, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? 4 क्रॉस 8 से. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर आर 4 नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड ईच रजिस्टर कैन स्टोर 8 बिट ऑफ डेटा. तो इस तरह से किसी भी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है. इस मेमोरी में नंबर ऑफ रजिस्टर्स 4 है और 1
रजिस्टर कैन स्टोर 8 बिट ऑफ डेटा। अब इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? माइक्रोप्रोसेसर, first of all, microprocessor will identify the register. And how will it identify the register? By sending the address. ये जो एड्रेस यहाँ पे है, हर रजिस्टर का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर का 00 एड्रेस है, इसका 01 101। तो बाय सेंडिंग द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ एड्रेस लाइंस, इट विल आइडेंटिफाई द रजिस्टर। एड्रेस लाइन से माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस को सेंड ट्रांसफर करेगा, देन इट विल बी डिकोडेड and one register will be selected, whatever the address is, the corresponding register will be selected. Then microprocessor will send the control signal. अगर इसे read operation perform करना है तो it will send the read control signal. अगर write operation perform करना है तो it will send the write control signal. Suppose microprocessor को write operation perform करना है, then it will send the write control signal. Then after getting the write control signal, this input buffer will be enabled, and whatever the data is available on the data bus of the microprocessor will be written into the selected register. Similarly, अगर microprocessor को read operation perform करना है, then it will generate the read control signal, and that read control signal will enable the output buffer, and whatever the data which is stored in one of the selected registers will be available on the data bus, and it will be read by the microprocessor. So इस तरह से ये 4x8 का जो मेमोरी है, इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अभी तक हमने मेमोरी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। नाउ वी विल सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स अ मेमोरी चिप शुड हैव। एक मेमोरी चिप के पास क्या क्या पिन्स होनी चाहिए, क्या क्या सिग्नल्स होने चाहिए, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं मेमोरी चिप की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मेमोरी चिप। तो मेमोरी चिप्स की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, इसमें हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती हैं? देयर आर 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, रिप्रेजेंटेड बाय A0 to A15। तो एक सिस्टम है जिसमें एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, एंड देयर आर several chips, several memory chips. For example, M1, M2, M3. Suppose this is read-write memory. This is also read-write memory, and this is read-only memory. तो एक सिस्टम है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8085 और देयर आर 3 memory chips. So in order to communicate what are the requirements of a memory chip, we are going to understand this. तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो सपोज कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर को इनमें से किसी एक मेमोरी से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। सपोज M1 से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है, या तो रीड करना है या तो राइट करना है। तो रीड या राइट करने के लिए सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एबल टू सेलेक्ट दैट मेमोरी चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इस तरह से उसे एबल होना चाहिए कि वो उस मेमोरी चिप को सेलेक्ट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी चिप में ऐसा प्रोविजन होनी चाहिए, ऐसा सिग्नल या ऐसे पिन होनी चाहिए जिससे माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी चिप को सेलेक्ट कर सके, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं CS, चिप सेलेक्ट सिग्नल। अभी हम इसे फाइनल ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि देयर शुड बी अ चिप सेलेक्ट सिग्नल।
with the help of which microprocessor can select the memory chip or can enable the memory chip select signal, or it is also called as chip enable signal. Chip enable signal. तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई. So after selecting the memory chip, once this memory chip has been selected from which the microprocessor is going to communicate, then what will be the further step? Since memory is collection of several registers, we have already seen memory is a collection of several registers. So किस रजिस्टर से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, किस रजिस्टर से डेटा को ट्रांसफर करना है, या तो रीड करना है या राइट करना है. इट इज अ combination of several registers, and we know that each register has some specific address in the form of binary data, either 0 or 1. Each register has some specific address. Next step में क्या होगा, microprocessor should be able to send that particular address to identify that particular register. जिस रजिस्टर से डेटा का ट्रांसफर करना है, सपोज ये रजिस्टर है जिसका एड्रेस है 400H. H यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सपोज 4000H एड्रेस का जो रजिस्टर है उसमें एक डेटा है 56H. इस डेटा को माइक्रोप्रोसेसर वांट्स टू रीड. इस डेटा को माइक्रोप्रोसेसर रीड करना चाहता है. तो रीड करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द चिप. ओके, नाउ माइक्रोप्रोसेसर विल सेंड द एड्रेस that is 4000H to identify this register or to select this register. So there should be address lines also on the memory chip. There should be address lines also on the memory chip. Memory chip के पास address lines भी होनी चाहिए, इसके थ्रू that particular register will be identified. The second requirement क्या हो गई, एड्रेस लाइंस. और ये एड्रेस लाइंस मेमोरी में जो इंटरनल डिकोडर है इसके थ्रू जो भी एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर ने सेंड किया है दैट विल बी डिकोडेड. ओके, तो एड्रेस लाइंस आल्सो रिक्वायर्ड. Then register is identified. Now what kind of operation is to be performed? So there are two types of operation, either read or write. One of them can be performed at a time. तो अगर माइक्रोप्रोसेसर को रीड करना है तो it will send the read control signal. It will generate the read control signal and send the read control signal. So there should be control lines, either read or write, in the memory chip also to receive that control signal. और अगर अच्छा ठीक है, इतनी बातें हो गई. क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक मेमोरी, एक अगर हम रीड ओनली, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम रीड राइट मेमोरी की बात कर रहे थे. फिर रीड ओनली मेमोरी इसके बाद देखेंगे. रीड राइट मेमोरी में कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं. सबसे पहले तो इट शुड हैव चिप सेलेक्ट सिग्नल. देन मेमोरी चिप रिक्वायर्स एड्रेस लाइंस to identify a memory register. So जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है और जो एड्रेस लाइंस है, तो एड्रेस लाइन से क्या होगा, ये एड्रेस आइडेंटिफाई होगा और जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है उससे वो चिप सेलेक्ट होगा. तो अब दूसरी बात ये होती है कि अगर एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है तो कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि जितने भी मेमोरी में जितने भी रजिस्टर्स होंगे
ये बात उस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इस मेमोरी में कितने नंबर ऑफ लोकेशंस या रजिस्टर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस मेमोरी में एग्जांपल के तौर पर इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स 8 है या नंबर ऑफ लोकेशंस 8 है। तो इन 8 रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो भी एड्रेसेस ट्रांसफर कर रहा है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। सो we can identify the number of address lines with the help of this formula, which we have already seen in the previous lectures. 2 to the power small n equal to 8, where n is number of address line, small n is number of address lines, and this is capital, this is represented by capital N, or any other symbol also you can use. तो यहाँ से हम ये नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल की बात करें तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी जरूरत है, 3 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ दिस मेमोरी चिप। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के पास टोटल कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है, देयर आर टोटल 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो इस मेमोरी चिप को जितने भी एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, सपोज यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है, तो 3 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस विल बी यूज्ड, और 3 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ दिस मेमोरी चिप शुड बी कनेक्टेड विद द 3 एड्रेस लाइंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। दूसरे एग्जांपल में अगर हम कंसीडर करें कि मान लीजिए किसी दूसरे मेमोरी चिप में अगर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है 10, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोकेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 2 to the power 10 दैट इज 1 किलो 1K। एक्चुअली इन द कंप्यूटर स्टडी, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो इसमें 2 to the power 10 का मतलब होता है 1024, और 1024 को कंप्यूटर के टर्म में कंप्यूटर सिस्टम स्टडी करते समय इसको हम 1K से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 किलो 1K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 to the power 10 का मतलब है 1024, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज इस मेमोरी चिप में देयर आर 1024 नंबर ऑफ रजिस्टर्स, 1024 number of registers, and each register can store 8 bit of information। तो 8 bit का मतलब होता है 1 byte, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मेमोरी है, अगर इसमें 2 to the power 10 नंबर ऑफ लोकेशंस हैं या रजिस्टर्स हैं, और एक लोकेशन या एक रजिस्टर 8 नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है, तो इस मेमोरी को हम कह सकते हैं कि ये 1 किलो बाइट की मेमोरी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लोकेशंस 1K है, 1024, एंड ईच लोकेशन कैन स्टोर 8 बिट और 1 बाइट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इस मेमोरी चिप में कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है। इस मेमोरी चिप में 10 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो भी 10 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं A0 to A9 से, तो इसके 10 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस शुड बी कनेक्टेड विद द माइक्रो प्रोसेसर, विद द एड्रेस लाइंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। अब माइक्रो प्रोसेसर के पास कितने रिमेनिंग नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस बचे, A0 से A9 तक तो ये कनेक्टेड हो गए इस मेमोरी के एड्रेस लाइन से। Then the remaining address lines, that is from A10 to A15, are used. These address lines are used to select the chip. To select the chip through an interfacing logic. अभी हम इस इंटरफेसिंग लॉजिक को एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझते हैं कि जो एड्रेस लाइंस ऑफ मेमोरी है that should be connected with the address lines of microprocessor. This is necessary to identify a register. और इस चिप को सेलेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है,
इस चिप को सेलेक्ट करने के लिए ये जरूरी है, द रिमेनिंग एड्रेस लाइंस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर आर यूज्ड टू सेलेक्ट द चिप थ्रू एन इंटरफेसिंग लॉजिक। ठीक, तो ये तो एड्रेस लाइंस की बात हो गई जिसकी मदद से चिप को सेलेक्ट किया जाता है और रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द माइक्रोप्रोसेसर यूजेस द कंट्रोल सिग्नल्स, रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल्स टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉडल बनेगा रीड राइट मेमोरी का, वो मॉडल कैसा होगा, इसको इन सारी बातों को अगर हम एक मॉडल या एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में कंक्लूड करें तो रीड राइट मेमोरी का जो मॉडल बनेगा कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसमें चिप सेलेक्ट सिग्नल होना चाहिए, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होनी चाहिए। कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस? इट विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ लोकेशंस और हाउ मेनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन द मेमोरी। तो एड्रेस लाइंस it can be determined by the formula 2 to the power small n equal to capital N, where capital N is the number of registers or number of memory locations or number of addresses, and small n is number of address lines। तो इस फॉर्मूले से या इस रिलेशन से नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। Apart from that, there should be read control signal and write control signal, and to read and write there should also be data lines। So these are the requirements which are important for read write memory। रीड राइट मेमोरी की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बनी हुई हैं ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में। अब अगर हम बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी की अगर बात करें तो in our previous example, suppose if microprocessor is going to establish the communication with this ROM, that is the third chip. In the previous example, we were considering the first chip. Now, say microprocessor is going to communicate with the third chip, that is a read-only memory. तो क्या-क्या important चीजें हैं? सबसे पहले तो microprocessor should be able to select that memory chip. So again, to select the memory chip, there should be a chip select signal. Then ROM is also, we have studied that ROM is also group of registers. So there are several registers, and किस रजिस्टर से डेटा को रीड करना है या इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए there should be address lines. With the help of address lines, that particular address will be selected. Then what kind of operation we can perform in the ROM? रीड ओनली मेमोरी में हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं? रीड ओनली मेमोरी में यूजर कैन नॉट ऑल्टर द व्हाटएवर दे स्टोर्ड इन द रीड ओनली मेमोरी। यूजर कैन ओनली परफॉर्म द रीड ऑपरेशन, सो देयर इज द नीड ऑफ ओनली रीड कंट्रोल पिन हियर, नॉट राइट कंट्रोल सिग्नल। In this memory chip, there is requirement of only read control signal. These are the data lines. These are the models which shows the requirement for read write memory and read only memory.